All right. Before we move ahead, what is important is the ninth grade, some knowledge of it. That is the trigonometric table. I hope you know that. Oh, I can hear that. Okay, no problem. If you don't know, I'll teach you the shortcut method today, that how you can make the trigonometric table completely instead of just by hearting or rote learning. Math, no rote learning. Let's see how does this goes. Let's say I have angles on this side, that's horizontal, and I have ratios on vertical side, and I have sine, cos, tan. Okay, now what after sine is cosec, sec and cot. And the angles what we need to know is 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees and 90 degrees. These angles we need to know thoroughly, because we have to use these values in the next exercise, which is 6.2. So let's start. I'll just tell you a short story. Let's say your mother offered you a fruit juice, homemade, not Tetra Pak, and you didn't like that. So you said, don't force me, I'm not going to have it. So you didn't have it. You didn't have that. But somehow next time your mother again made that same juice and she offered you, and you said, nahi pina hai, kyun force karte ho. But somehow other side you said, let's try a bit. So you took maybe 1/4 of it. So you said, I will drink only quarter, like a small amount, 1/4. Next time your mom again made, she again offered you, and you said, I liked the last time what you made, but this time I'm increasing the quantity of the drink. So you said, I'm not going to take 1/4, give me half. Nice. Later on, you still like that half, and then you said, this time again your mom made it, and you said, I'm going to have it 3/4 of it. And finally the next time you yourself approached your mother and you said, make that juice again, and I'm going to have it full glass. So one. Only this much you need to remember. After that we will find the square root and you get all the values. Simple. Find the square root of all these values. Okay, so if you find the square root of all these values, what value will we get it? And I'm going to write the final value of all this. Okay, so I know square root of 0. What value will I get for square root of 0? Okay, so square root of 0 will give me 0. Right or wrong? Square root of 0 will give me 0. So square root of 0 will give me 0. Square root of 1/4, I am writing directly answer now. Square root of 1/4, square root of 1 will give me 1, so I remove that. Square root of 4 will give me 2, so I get this answer as 1/2, that is half. Square root of 1 over here will give me 1, and square root of 2 will be as it is, so this will be 1/2. Square root of 3 will remain as it is, so we'll write square root of 3, but square root of 4 which goes with down will be turning into half. That means square root of 4 is 2, and square root of 1 will give me 1 itself. So simple. It's so simple, believe me. Now for all this table you don't have to worry at all. Take the reverse values of all this what you got. Sine में ऐसा है, cos में take उल्टा. Cos का take 1 over here. रूट 3/2 टेक इट इन दिस कॉलम. देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आएगा, सो 1/√2, एंड ये इधर आ गया तो दिस बिकम्स हाफ, ये इधर आ गया तो ये बिकम्स 0. So simple. Now we have learned one formula, that is sin theta upon cos theta is equal to tan theta. Once you know the value of sine and cos for all these angles, I mean like sine 0 is 0, sine 30 is half, sine 45 is 1/√2, all this, we will just divide these values and see what answer do we get. So let's say
In this table, I am dividing it like this: 0 divided by 1, because sine divided by cos. Sine divided by cos will give me 10 for different angles. 0 divided by 1, which is actually not possible, so I am going to write 0. Half divided by root 3 by 2. This and this gets cancelled. So 1 न्यूमरेटर में रहेगा and डिनोमिनेटर में root 3 आ जाएगा. ओके, दिस 1 by root 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा 1. यहाँ पे this 2 and 2 will get cancel, अगर ये बीच में डिवाइड साइन है तो ये और ये कैंसिल हो गया. रूट 3 अपॉन 1 will give me रूट 3 और 1 अपॉन 0. एक्चुअली 1 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकते 0 से. फॉर योर नॉलेज लीव इट एज 0. कोसेक s है, किसका रेसिप्रोकल रहेगा? साइन का. ओके, सो जो भी वैल्यूज हैं यहाँ सब उल्टा लिखो. देखो 0 1 बाई 2, तो यहाँ पे तो इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये 2 हो जाएगा. 1 अपॉन रूट 2 तो हो जाएगा रूट 2 अपॉन 1, मतलब रूट 2 ही हो जाएगा. और यहाँ रूट 3 बाई 2 विल टर्न इनटू 2 अपॉन रूट 3, और ये 1 का रेसिप्रोकल तो 1 हो जाएगा. सेक कॉस की जो वैल्यूज है उसका उल्टा लिखेंगे, 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ही. रूट 3 बाई 2 का हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3. 1 बाय रूट 2 का हो जाएगा रूट 2, और 2 बाय 1 का हो जाएगा 2, और ये तो 0 ही रहेगा. कॉट किसका रेसिप्रोकल आएगा? 10 का. ओके, सो 0 का 0, 1 बाय रूट 3 का रूट 3, 1 का 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3. क्यों? देखो रूट 3 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन रूट 3 हो गया, और ये 0. इट्स सो सिंपल. इस टेबल को अपने दिमाग में फिट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, नज़र के सामने रखो एक दो बार, या फिर सबसे अच्छा है कि ये तरीका याद कर लो. दिस इज द मेथड विच यू नीड टू नो इट वेरी वेल फॉर आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. अगर ये टेबल आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्मूथली जाएगा बॉस. एंड आई नो यू कैन डू इट मच बेटर देन मी. गो अहेड, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. Okay, so let's start with the exercise and let's see what questions are all about. So here we go with some basic knowledge what you require for exercise, and that is two important words which will be used here. One is the depression word. Don't take it in wrong direction. It has different meaning. And the other one is elevation. Depression and elevation, these are words. Don't get depressed with this word. There is no such word called as depression in our dictionary. Keep giving it. Give your best. Now, what is the meaning of depression and elevation? Elevation means up. Always elevate yourself. That means keep an eye up. Not always means while walking also you need to see down. So let's say that I have one building over here. And this I am standing somewhere here. Okay, excuse my diagram, and I am observing something over here at the top of the building. So when I am observing something at the top of the building, my view is in the upward direction. So if I draw the horizontal over here, this particular angle which is made, let's say this angle is theta itself, this angle will be called as angle of elevation. What we see is angle of elevation in the upward direction. Mind it, elevation, elevate, up. Now if there is one of my friend, let's say, standing at the terrace and he is observing me downward. So now this particular horizontal angle I am just making at this end. If he is observing from here in the downward direction, then this angle will be my theta, and this angle in the downward direction, that is this horizontal say in the downward direction, is called as angle of depression. And these two angles are actually same because these two are parallel lines, and this is my transversal. I am taking this as a view. You can take it from here also, it doesn't make any difference. So angle of depression from top to bottom when we observe downward, and angle of elevation is in the upward direction, elevate. Okay, so this was the basic you require to know about these angles, which we may require in the next exercise. So let's look at the word problems what we will be solving. Practice set 6.2. This is practice set 6.2 or exercise 6.2. I am reading the question
And let's see that how do we understand this. A person is standing at a distance of 80 meter. Always draw the diagram. A person, let's say I am taking this point A as a person, and this person is standing at a distance of 80 meter. So this person is standing at a distance of 80 meter, okay, from a church, looking at its top. So somewhere this is my church, let's say B, C. So a person standing at a distance of 80 meter from a church looking at its top. The angle of elevation is 45. So that means this person is looking at the top over here, and this is my angle of elevation. They have given angle of elevation is of 45 degrees. So this angle is my 45 degrees. Okay. They have asked find the height of the church. That means you have to find this BC. Now, how do we start with this? You have to first write what notations we are using it. Let A be the point where a man stands at a distance from church, and this church is my BC. Okay, so see, very important thing what we need to know here is, in this particular triangle, which ratio should we take? Very important. Should we take it sine, cos, tan, cosec, sec, cot, whatever it is? But you have to select the ratio in such a way that what you have to find and what is given should be in that ratio. So ये 45 है. Okay, now tan 45 के लिए if I take 10, I get opposite side upon adjacent, OA, 10 T, OA, opposite upon A. So I write here that in triangle ABC, tan B, that is this, tan A is equals to opposite, which is BC, upon adjacent, which is AB. Now this angle A is given, it's 45. So tan of 45 degrees equals to BC, we don't know, upon AB is 80. Tan 45. What is the value? It's 1, equals to BC upon 80. 80 goes there. So therefore BC is equals to 80 meter. Final answer. Therefore, because the question says find the height of the church. This is the height of the church. So we'll write therefore height of the church is 80 meter. Are you getting it how to do it? I hope you got it. You need to practice. Okay, so let's look at the second question, question number 2. Okay, so question number 2 goes something like this. So let's read question number 2 and try to understand what does this question number 2 means. From the top of a lighthouse, so we'll first draw the diagram. Lighthouse, so I am drawing building something like this, and let's say this is my lighthouse which has a light somewhere here. Okay, question says from the top of a lighthouse an observer looking at a ship. So lighthouse is actually, it's somewhere the sea or ocean where they observe the things from the height. So let's say that this is my sea or ocean and there is a ship over here. Okay, so I'm just drawing such a simple ship, I don't know much about it, and he is observing this ship from here. Okay, and looking at a ship makes angle of depression of 60 degrees. Angle of depression, that means from here the downward angle, this is how much? 60 degrees. Okay, if the height of the lighthouse is 90 meters, that means this height is given as 90 meter. Always draw the diagram, it becomes much clearer for us. Then find how far is the ship from the lighthouse. That means this ship is how far from the lighthouse. They have given the value of root 3, which is 1.73. Okay, if I want to draw this, my diagram will be something, I can take this diagram also, but if you draw it precisely, it will be something like this, just for your understanding. Let's say A, B, C. This angle is my 60 degrees.
but isn't it this angle will turn out into 60 alternate angles? This is also parallel, this is parallel, transversal 60 degrees, this is 90, and we have to find this distance. So I'm not writing the statement. What statement will you write? You have to assume everything over here. Assume like let BC, क्या लिखेंगे? BC is what? The height of a lighthouse. Whatever you have assumed, जो assume किया है वो लिखना पड़ेगा. Okay? A, position of ship. Position of a ship. Okay? What is AB? Distance. Distance between what? Tell me. Yes, I can hear that. Distance between lighthouse. Okay? Distance between lighthouse and ship. Correct? Now, क्या करेंगे? In this figure, look at this. This is 60, तो ये भी 60 हो गया. I can show this in the diagram, or I can show this as angle CAB is equal to angle DCA, alternate angles. So if I show this working as alternate angles, therefore I am going to get angle CAB as 60 degrees. So I got this angle as 60. Okay, now see, I have opposite, I want to find adjacent. OA, opposite, adjacent. Which ratio will we take? I can hear that. Nice. It's 10. Tan of A, that is this angle, equals to BC, opposite upon adjacent, which is AB. Therefore tan A is how much? 60 degrees. So tan 60 equals to BC is 90 upon AB. AB goes this side, but what is the value of tan 63? Do you know this? No? I'll tell you. Tan 60 is root 3. So this becomes root 3 into AB. AB goes to the left, is equals to 90. Therefore AB is equal to 90 upon root 3. Okay, now I'll just erase this part because we need space now. Okay, so see what logic we have to apply here is, I'll erase this also, not required now. Now they have given the value of root 3. Root 3 is 1.73. So root 3 is given as 1.73. If I use root 3 as 1.73 over here and divide 90 by 1.73, it's gone. Division will take too long time. What we will do? We'll rationalize the denominator. So multiply by root 3, multiply by root 3. This becomes 90 root 3 upon root 3 into root 3 is 3. 3 ones are 3. So I get this as 30 root 3. Therefore AB equals to 30 into 1.73. And I think you can multiply this easily. 1.73 into 3 karo. 3 3s are 9, 7 3s are 21, 1 here 2 carry, 3 1s are 3, 4 5, 5.19. बट एक 0 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो आगे गया 51.9. सो AB is 51.9 मीटर. डोंट फॉरगेट टू राइट द फाइनल स्टेटमेंट. फाइनल स्टेटमेंट क्या है? The ship is 51.9 meter away from the lighthouse. I hope you are getting it. If you're not getting it, come up with this. I'm going to give few questions as a practice. So एक PDF worksheet रहेगा, you can download from the link. Okay, let's go to the next question. Question number 3. Okay, question number 3. Now let's read question again, try to understand what it means. Two buildings are facing each other. दो बिल्डिंग एक दूसरे को फेस कर रही है. So let's say ये एक बिल्डिंग हो गया AB और एक दूसरा बिल्डिंग हो गया let's say CD. And it's common sense कि दोनों सेम ग्राउंड पे ही हो गए. सो एक्चुअली दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ऐसा दोनों पैरेलल है बट सरफेस पे तो परपेंडिकुलर ही होगा. समझे? टू बिल्डिंग्स बोला है, आगे पढ़ते ठीक है. टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विद 12 मीटर्स. इसका मतलब एक बिल्डिंग रोड के लेफ्ट में है, एक बिल्डिंग रोड के राइट में है. तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है ये रोड है. दिस इज माई रोड. ओके, एक रोड के राइट में, एक रोड के लेफ्ट में.
From the top of the first building, which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of the second is 60. So let's say इसकी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं, छोटी बिल्डिंग है, कम लोग रहते हैं. ओके, नाउ फिर से क्वेश्चन रीड करते. टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विद 12 मीटर. तो ये विद कितना दिया हुआ है? ये 12 मीटर विद दिया हुआ है. फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई. ये कितना हाइट दिया हुआ है इसका? ये बिल्डिंग का हाइट दिया है 10 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मतलब वो बोल रहा है कि यहाँ से इसको ऊपर देख रहा है. एलिवेशन का मतलब वही होता है ना बच्चे लोग, एलिवेशन मीन्स ऊपर देखना. अब मैं ये ड्रॉ करता हूँ और मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन ये चाहिए. एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देखते तो एलिवेट अप. कितना दिया हुआ एलिवेशन एंगल? 60 डिग्रीज. दिस एंगल इज 60 डिग्रीज गिवन. What is the height of the second building? So they have asked you what is the height of this building? AB. Okay. Now since ये कंस्ट्रक्शन किया है और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये A B C D हो गया. Let's say I'm taking this point as M. Okay. Now let's understand here क्या in this figure whatever is given you have to write that first. So DC क्या है? What is DC? DC is a small building. बराबर है? राइट और रॉन्ग? अरे सही है ना भाई. और ए बी क्या है? ए बी इज टॉल बिल्डिंग. ये लिखना पड़ेगा, एग्जाम में मार्क्स जाएगा वरना. टॉल बिल्डिंग. ओके. ए सी इज व्हाट? ए सी इज विड्थ ऑफ द रोड. राइट और रॉन्ग? विड्थ ऑफ रोड है. ठीक है. वो एंगल एलिवेशन छोड़ दो, नहीं भी लिखा तो चलेगा. नाउ इन द फिगर व्हाट वी हैव डन, वो लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट डी एम परपेंडिकुलर टू साइड ए बी. ये ए बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. रीजन है एक, क्योंकि देखो ये क्या करेंगे ना, हम डी एम ए सी को एक रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे बिकॉज हाइट हमको ए बी चाहिए. सो दिस प्लस दिस करना पड़ेगा. सो ये 10 AM है. ओके. देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल को देख लेंगे क्या है. डी एम AC इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि वो फिगर में दिख रहा है और परपेंडिकुलर है एंगल्स, तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. देयरफॉर MA, देखो ये MA विल बी इक्वल टू DC. सो देयरफॉर MA इज इक्वल्स टू 10 मीटर. मतलब ये मेरा MA कितना हो गया? ये 10 मीटर हो गया. एंड DM, ये DM इक्वल रहेगा किसको? AC. सो देयरफॉर DM इज इक्वल्स टू AC कितना है? 12. ये दोनों जगह पे रीजन लिखेंगे. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे भी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. मैंने बोल दिया, अभी लिखता नहीं है. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये 12 है तो ये भी 12 मिल गया, 12 मीटर. अभी ये चाहिए. द मोमेंट यू गेट दिस BM, अब इसको ऐड कर देंगे. ठीक है. सो क्या करेंगे? विल एज्यूम दैट इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? DMB. इन ट्राइंगल DMB देखो ये एंगल है, हमको ये चाहिए. फॉर दिस एंगल वी नीड ऑपोजिट एंड दिस इज एडजेसेंट. OA ऑपोजिट एडजेसेंट OA. हाइपोटेन्यूज की जरूरत ही नहीं है. सो 10 लेंगे. 10 ऑफ D इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, दैट इज BM अपॉन DM. Therefore 10 ऑफ D कितना है हमारे पास? 60 डिग्रीज है. इक्वल टू BM नहीं पता है, अपॉन DM कितना है? DM हमारे पास 12 है. ये 12. 1060. हाउ मच इज 1060? इट्स √3. सो √3 इंटू ये 12 यहाँ आ गया इक्वल्स टू BM. ये 12 को √3 जो अंदर है 3 इससे मल्टीप्लाई नहीं करना. ये रैशनल नंबर, ये इरैशनल नंबर है. समझ में आ गया? सो इट विल बी रिटन एज देयरफॉर 12 √3 इज इक्वल टू BM. नाउ इज देयर द वैल्यू ऑफ √3 गिवन? √3 दिया नहीं है तो यूज मत करना. ठीक है. अभी डायरेक्टली हम लोग फाइंड करेंगे AB. AB इज व्हाट? AM प्लस MB. और रीजन क्या लिखने का है? पॉइंट्स कोलिनियर है. सो A' M' B.
ओके, सो देयरफॉर AB इक्वल्स टू AM कितना मिल गया 10 प्लस ये तो मिला ही है हमको 12√3। ओके, दिस विल बी माय आंसर मीटर में। चाहिए तो यहाँ से कॉमन निकाल लो या फिर √3 का वैल्यू 1.732 सब्स्टिट्यूट करके देख लो, आंसर यही आएगा। ठीक है, ओके, शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड विल प्रोसीड अहेड। देखो, in these questions actually you need to draw the figure, रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आंसर फटाफट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट गोज लाइक दिस। क्या दिया है देखिए, 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर, मतलब बता रहा है कि 2 पोल है, एक 18 मीटर का पोल, समझता है लाइट पोल, पत्थर मार के जिसके बल्ब फोड़ दिया आपने, रास्ते के जो लैंप पोस्ट होते हैं वो है, मत करना ऐसा काम, गवर्नमेंट का नुकसान होता है इसमें। सो 18 मीटर का एक लाइट पोल है। ओके, दैट मीन्स 2 पोल्स है, तो एक 18 मीटर का और दूसरा क्या है, दूसरे का हाइट कितना दिया हुआ है, दूसरे का हाइट दिया हुआ है 7 मीटर। ओके, वन पोल्स हाइट इज 18 मीटर, द अदर वन इज 7 मीटर। आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, सो ऑब्वियसली ये ग्राउंड सरफेस हो गया। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप्स इज 22 मीटर, मतलब ये जो है ये वायर है और ये वायर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टाई किया हुआ है, खींच के, तार होती है ना तार, वैसे तार से बांधा हुआ है इसको। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब वो बोल रहा है कि ये वायर इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है वो फाइंड करो। तो ये तो परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आया पूरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है? वो बोल रहा है कि ये वायर एक पॉइंट से यहाँ तक, जैसे लेट्स से ये A है ये B है, तो A भी हमारा वायर है और ये लेते हैं D और ये C। सो AD एक पोल है जो 7 मीटर का है और BC एक दूसरा पोल है जो 18 मीटर का है, और एक पोल से दूसरे पोल के ऊपर एक वायर बांधी हुई है। हमको ये देखना है कि ये वायर ग्राउंड सरफेस से या ये पोल से कितने एंगल पे है। ओके, ऐसे ही बोला है, बराबर है। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसने कितना एंगल बनाया हुआ है। ओके, सो कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए। देखो, हमको एंगल चाहिए, अभी थोड़ा सा उल्टा जा रहा है। अच्छा, वायर का लेंथ भी दिया हुआ है, देखिए वायर का लेंथ दिया है ना 22 मीटर, तो ये कितना दिया हुआ है, ये 22 मीटर है। ओके, ये 7 है तो ऑब्वियसली ये भी 7 ही होना चाहिए। देखो ये डिस्टेंस, अगर मैं बता दूं कि ये रेक्टेंगल है A और लेट्स से ये पॉइंट को लेते हैं ABCDEF ले लेते हैं अभी AFCD, अगर ये मेरा रेक्टेंगल बता दिए हमने तो ये 7 है तो ये भी 7 होएगा, ये टोटल 18 है। सो 18 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ये 11 मीटर हो जाएगा। बराबर है, समझ में आ रहा है क्या? ओके, और अब एंगल चाहिए, थोड़ा सा उल्टा घुमा के दिया है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समझने का लॉजिक चाहिए था यहाँ पे। ओके, सो सिंस डायग्राम सामने है, मटेरियल लिखना है, क्या लिखेंगे, AD क्या है बोलिए, बोलो AD क्या है, हाइट ऑफ द पोल, वेरी गुड, अ स्मॉल पोल। नेक्स्ट क्या है, BC, व्हाट इज BC, हाइट ऑफ द अनदर पोल, ये भी करेक्ट जवाब दिया आपने। नाउ फिर ये लिखिए AB क्या है, व्हाट इज AB, AB is the wire fastened between the point A and B। ओके, ठीक है, फिर बाद में हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन में ही, ये सोल्यूशन ही है, ड्रॉ AF परपेंडिकुलर टू BC, AF परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC के लिए, क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल AFCD इज अ रेक्टेंगल, तो ये मेरा क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, बराबर है, AFCD रेक्टेंगल हो गया। सो देयरफॉर FC इज इक्वल टू AD, देयरफॉर FC इज इक्वल्स टू 7 मीटर। यहाँ पे रीजन वही लिखना है, क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सेम वे दूसरी, ये साइड नहीं चाहिए, ये साइड नहीं चाहिए। ओके, अब वो लिखना है कि BF कैसे मिला है, देखो कैसे लिखेंगे, BC इज एक्चुअली इक्वल टू BF
प्लस एफ सी, कोलिनियर पॉइंट्स है, सो बी डैश एफ डैश सी आ जाएगा। देयरफॉर बी सी कितना दिया, देखिए बी सी, ये बी सी पूरा दिया हुआ है 18, तो 18 लिख दिए। बी एफ वी डोंट नो, फाइंड करना है, प्लस ये एफ सी दिया था 7, तो ये 7 इधर आ गया, 18 माइनस 7 इक्वल्स टू बी एफ। देयरफॉर बोलो बी एफ कितना मिला, बी एफ इज हमको कितना था 8 9 10 11 मीटर मिल गया बी एफ। ओके, नाउ वी टेक दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी एफ, देखो ये एंगल चाहिए ना। ओके, अब ये एंगल के लिए देखो, ये एंगल के लिए एडजेसेंट साइड नहीं पता है, बट ये एंगल के लिए ऑपोजिट साइड पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, ओह स्कूल, ओह साइन, जो मेरा लेक्चर देख रहा है उसको नहीं समझ में आएगा, स्कूल क्यों बोला है। ट्रिगो का फर्स्ट लेक्चर देखिए, स्कूल, साइन ऑफ ए विच इज बी ए एफ, साइन ऑफ बी ए एफ, या इसको चाहिए तो x दे दो एंगल और यहाँ x लिख दो। साइन ऑफ बी ए एफ इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड विच इज बी एफ, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। नाउ बी एफ कितना है 11, हाइपोटेन्यूज कितना है 22, ये हो गया हाफ, कितना हो गया हाफ। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर साइन ऑफ बी ए एफ दैट मींस दिस एंगल इज हाफ। लेकिन साइन के, लेट्स से इसको इक्वेशन में देते, साइन के विच एंगल में आपको हाफ मिलता है, साइन के किसी एंगल में हाफ मिलता है, याद आ रहा है, आई कैन हियर दैट, नाइस। साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू हाफ। अब जब ये दो इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो राइट हैंड साइड इक्वल है, दिख रहा है। जब राइट हैंड साइड इक्वल होता है, सॉरी ये इरेज करता हूँ, राइट हैंड साइड इक्वल दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होएगा। सो देयरफॉर साइन ऑफ बी ए एफ इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। देखो ये कैंसलेशन मत दिखाना ऐसा ऐसा, बट फिर फाइनल आंसर लिखेंगे दैट एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सो ये बी ए एफ था, बराबर है 30 डिग्रीज आ गया। लेकिन फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना है, जैसा वहाँ दिया हुआ है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। So the angle made by the wire with the horizontal is 30 degrees. I hope you are getting it. You need to practice questions from problem set based on this all. Okay, let's go to the next question. Okay, next question. I hope you are getting it. Okay, नहीं समझ में आएगा कभी पूछ लेना, हेल्प कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। यू कैन टेक अ ट्राई, पॉज द वीडियो, ट्राई ड्रॉइंग द फिगर एंड मैच योर फिगर विथ माइन। लेट्स सी हु गोज विथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस। वो क्या बोल रहा है देखो, समझेंगे। ये ट्री है एक मेरा, ओके समझ लो ये ऐसा झाड़ था। नाउ ड्यू टू स्टॉर्म, लेट्स से हवा ऐसा आया और ये झाड़ जो है ये टूट गया। ट्री नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ, टाइम नहीं है। एक वर्टिकल बार ड्रॉ कर दिया है। अभी अगर टूटा तो क्या दिया देखो, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप, मतलब ट्री के ऊपर का जो ये टॉप पार्ट है, ट्री टॉप क्या दिया है, रेस्टेड 20 मीटर। तो ये ट्री टॉप टूटा, इसका मतलब ये है कि हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ से ये टूट गया ट्री के ऊपर का, और ये ट्री आके ऐसे नीचे गिर गई। ओके, लेट्स से ये ट्री का जो ट्री टॉप था वो ऐसे गिर गया इधर नीचे आके ज़मीन पे। समझ में आ रहा है, हवा ऐसी आई, ट्री का ऊपर का पार्ट टूट गया और वो ट्री का ऊपर का पार्ट नीचे आके टच हो गया। लेट्स से ये ग्राउंड पे ए पार्ट पे टच हो गया, ओके, और ए ये हो गया, तो सॉरी इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। सो सी ए क्या बता रहा है, सी ए इज ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ट्री का टूटा हुआ हिस्सा जो जमीन पे टच हो गया, सी ए। ओके, नाउ अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड अ ट्री टॉप, ये ट्री टॉप क्या दिया है, रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। वो बोल रहा है ट्री के 20 मीटर डिस्टेंस पे आके ये रेस्ट पे गिर गया, मतलब ए पॉइंट ऊपर से ऐसा था, ये टूट के इधर आ गया ऐसा ऐसा, ठीक है। आगे मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये जो टूटा है इसने यहाँ से एंगल बनाया है कितना, 60 डिग्री। देखो वैसे ही बोल रहा है
ट्री टॉप के बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। कौन से वर्ड के बारे में? ट्री टॉप। सो ट्री टॉप आके गिरा, 20 मीटर डिस्टेंस पे गिरा ट्री से, और क्या एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल से? 60 डिग्री पे। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ये क्या बोल रहा है? हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो यहाँ क्या था, हाइट ऑफ द ट्री। सो लेट हाइट ऑफ द ट्री बी सी ए, मतलब बी ए। ये पूरा अखा ट्री बोल रहा है ना भाई, समझ रहे हो क्या? वो बोल रहा है ये पूरा ट्री का हाइट फाइंड करने का, ट्री का मतलब बी सी भी चाहिए और सी ए भी चाहिए। ऐसा नहीं बोला है ब्रोकन पार्ट, दे आर सेइंग कंप्लीट ट्री, मतलब बी सी और सी ए दोनों चाहिए। सो लेट हाइट ऑफ द ट्री बी ए, ओके, एंड ए इज द ट्री टॉप from tree, that is point B. ओके, ये इरेज कर देते हैं, that is point B. Now तो देखो दो चीज़ फाइंड करना पड़ेगी। ये 20 है ये, तो पहले ये ढूंढना पड़ेगा, फिर ये ढूंढना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन को समझना चाहिए था यहाँ पे। ओके, व्हाट इज AC? AC is the broken part, broken tree top. Okay, now in triangle ABC, देखो ये तो 90 रहेगा, so in triangle ABC काम करते हैं, पहले opposite find करते हैं, ठीक है। so 1060 is equals to opposite which is BC, क्या आएगा? BC upon AB. now 1060 कितना होता है? √3 इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी कितना है? 20 यहाँ जाएगा, सो देयरफॉर ये हो जाएगा 20√3 इक्वल्स टू बी सी। देखो √3 का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है इन दिस क्वेश्चन, सो विल लीव बी सी एज इट इज। सो 20√3 इक्वल्स टू बी सी मिल गया, ये वाला मिल गया। अब ए सी चाहिए, फिर से लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो कोई भी ले सकते हैं, अभी आप साइन ले लो, कॉस ले लो, जो भी सही लगे। तो मैं ले लेता हूँ साइन 60 इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। साइन 60 कितना है? साइन 60 √3 अपॉन 2, ओके, इक्वल टू बी सी अभी मिला 20√3 और ये अपॉन AC, ओके। नाउ AC यहाँ जाएगा, सो ये AC चले गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होएगा, तो ये 2 × 20 40 हो गया, और ये √3 वैसे रहेगा। ये √3 नीचे आ गया, तो √3 ये छू बच्चा 40, तो AC कितना मिल गया? ये मिला 40 मीटर, और ये भी ऑलरेडी मिल चुका है हमको 20√3। अभी दोनों को ऐड करना है, कैसे करेंगे? देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC प्लस AC। कोलिनियर पॉइंट्स नहीं लिखना है, BC इज 20√3 प्लस ये 40। आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या फिर 20 कॉमन लिया है तो 20 × √3 प्लस 2, क्योंकि ये तो 20 × 2 होता है। और आंसर में मीटर मत लिखना भूलना, और फाइनल आंसर भी लिखना भूलना नहीं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। डाउट है कोई? नहीं? गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज दैट्स प्रैक्टिस सेट 6.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या करना है ये भी देख लो, पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्या दिया हुआ? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब वो बोल रहा है कि एक पतंग है, उड़ाया है कि नहीं पतंग कभी? अरे क्या है, सो देयर इज वन काइट, ओके, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो बोल रहा है ये काइट जो है ये ज़मीन से यहाँ तक 60 मीटर हाइट पे है। कितनी मीटर पे? 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। ये इधर ग्राउंड पे इसको टाई किया है, ओके। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये कितने डिग्री बना रही है? 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। तो स्ट्रिंग ऐसी नहीं है, ये बोल रहा है स्ट्रेट है, तो हम भी स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं ऐसा, ठीक है। ये एंगल हो गया राइट एंगल, और ये 60 डिग्री है,
नेक्स्ट क्या बोला है, एज्यूमिंग विद द ग्राउंड, एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना है। अब पतंग तो मैंने अपने लिए बनाया था, उसको इरेज कर दो, मुझे तो पतंग उड़ाने आती नहीं है। पतंग आप लोग अच्छी उड़ाते हैं भाई, उड़ाते होगे ना, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल लिया, हमको ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देख लो कितना सिंपल है, यहाँ पे करना क्या है, बोलो क्या करना है। पहले तो यहाँ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट इज ए सी, ए सी इज द लेंथ ऑफ द, बोलो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके। सी पॉइंट at which kite is flying, बराबर है, ओके, at which the kite is flying, ओके। ए पॉइंट ए, टाइड स्ट्रिंग, पॉइंट ए पे स्ट्रिंग टाइड है, ओके। नाउ फिर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी लेंगे। देखो स्ट्रिंग चाहिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने ये ऑपोजिट है, और ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, ओ स्कूल साइन, तो साइन लेंगे, साइन 60 इक्वल्स टू ऑपोजिट विच इज बी सी अपॉन ए सी, साइन 60 इज √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू बी सी इज 60 अपॉन ए सी, ये तो चाहिए। ए सी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ए सी इक्वल्स टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। रूट वाले नंबर को डिनोमिनेटर में रखना नहीं है, और 1.73 यहाँ नहीं सब्स्टिट्यूट करना प्लीज़, आंसर नहीं आएगा। बस करना क्या है ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, यही तो तुम्हारा काम आसान करेगा, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा दोस्त, टाइम नहीं वेस्ट करना। 60 इंटू 2 इज 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है बच्चे लोग, 3 3 1 जा 3 4 40। सो देयरफॉर AC इक्वल्स टू 40 √3। आंसर अगर यहाँ तक छोड़ दिया, यू विल गेट रॉन्ग आंसर, बिकॉज √3 की वैल्यू दिया है 1.73, 40 इंटू 1.73। सो देयरफॉर AC की क्या वैल्यू आएगी वो फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाई आता है कि सिखा दो, 1.73 इंटू 4, 4 3 12, 7 4 28, 29 4 4 5 6 6.92, आगे 0 है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 69.2 मीटर। So what is the length of the string? The length of the string is 69.2 मीटर। I hope समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा कमेंट में बता देना, हेल्प कर दूंगा। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देंगे, प्रैक्टिस करना है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट नहीं है, इट डिमांड्स टाइम। एंड डोंट टेल मी दैट यू विल स्टार्ट स्टडिंग one day, no, say I will start studying day 1, not one day. I hope you will do it much better. Keep going.